بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز عادل، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ ساجمہ لیودن۔ آج کی تلاش میں سنسنی خیز انکشافات ہاتھ لگے ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خصوصاً DHC میں بیرونی بھرتیوں کے حوالے سے یہاں کتنی بیرونی بھرتیاں کی گئی، لوگ پوچھ رہے تھے، لوگ سوال کر رہے تھے، جاننا چاہتے تھے، مظاہرے کر رہے تھے کہ بیرونی بھرتیاں کتنی کی گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ بن چکا تھا جسے ہمالیہ ٹی وی نے حل کیا، اور اسی کے حوالے سے جانیں گے سجمل لیودن سے۔ جی سجمل، بتائیے گا کہ کتنی بیرونی بھرتیاں ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ بڑی مہربانی شاہنواز عادل، یہ بیرونی بھرتیاں جو ہوئی ہیں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہوئی ہیں۔ ایک کک سے لے کر چوکیدار، نائب قاصد، ڈرائیور اور سے لے کر جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بیشتر دیگر اضلاع سے، دیگر صوبوں سے لائے گئے ہیں، جو کہ کوہستان کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بڑا معمہ تھا۔ لوگ روز اول سے جاننا چاہ رہے تھے کہ DHC میں کتنی بیرونی بھرتیاں ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے سیکرٹ رکھا ہوا تھا، اور جب یہ بات ڈسکلوز ہوتی ظاہری بات ہے لوگ اپنا حق مانگتے۔ اور آج ہمالیہ ٹی وی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ DHC میں ٹوٹل کتنے ملازم ہیں اور کتنے ملازم ایسے ہیں جو دیگر اضلاع سے یا دیگر صوبوں سے بھرتی کیے گئے ہیں۔ لسٹ ایکسکلوزیو لسٹ ہے، ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے، DHC کی لسٹ ہے، جو اس وقت ہمارے ٹی وی کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لسٹ کے مطابق جو DHC ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 292 ملازم ہیں، جن میں سے یہ ٹوٹل تعداد ہے، جن میں سے 135 سے 140 دیگر اضلاع سے، دیگر صوبوں سے بھرتی کیے گئے ہیں، اور یہ 140 اور 135 افراد کوہستان کے نہیں ہیں۔ اور یہ جو 140 کا جو فگر ہے اس میں 35 غیر ملکی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ 108 اور 110 افراد ہیں جو پاکستان کے دیگر اضلاع سے، دیگر صوبوں سے لائے گئے ہیں، اور DHC میں کوہستان میں لا کر ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان 108، 10 اور 15 جتنے بھی ہیں ان میں 49 افراد پنجاب سے ہیں۔ پنجاب میں بھی بیشتر لاہور سے ہیں، فیصل آباد سے ہیں اور ٹوبا ٹیکسنگ سے ہیں۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ، دیر، چترال، دیامر، مظفر آباد اور ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع سے بھرتیاں کی گئی ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو کوہستان ریجن کے جو دیگر 2 اضلاع ہیں، اگر ایک بات ہوتی اپر کوہستان سے بھرتیاں کم ہوئی ہیں، لوور کوہستان سے یا کولے پالس کوہستان سے اگر ان کو وہاں کے لوگوں کو جابس دے دی جاتی پھر بھی ایک حد تک بات بن جاتی تھی، لیکن لوور کوہستان کے 5 افراد ہیں DHC میں اس لسٹ کے مطابق، اور کولے پالس کوہستان کا 1 ملازم ہے جو DHC میں کام کر رہا ہے۔ اور یہ خفیہ لسٹ جسے چھپایا گیا تھا ہمارے ٹی وی نے حاصل کر لیا ہے، اور اب میرے خیال میں بڑی آسانی ہوگی، اس کو لے کر اب لوگ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، بطور ثبوت کہیں پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ لسٹ ہے، یہ آپ کے ملازمین ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے نام، ان کی ڈیزگنیشن اور ان کا جو علاقہ ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام چوری چھپے ان میں بھرتی کیے گئے ہیں یہ لوگ، ان میں اشتہارات بیشتر کے نہیں ہوئے ہیں۔ اور اشتہار کے جہاں تک دیکھیں کچھ عرصہ قبل بھی ایسی بھرتیاں ہوئی تھی جن کے بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوئے تھے، مگر یہاں سچمل ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو اشتہارات پہلے تو نہیں دیتے ہیں، جب ان سے جانا جاتا ہے، پوچھنے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ کیٹاگری ہے، یہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو یہ ڈگری چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ہیلے بہانے ہیں یا ریالٹی؟ ٹال وڈول سے کام لیا جا رہا ہے، بہانے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم ہم جب گئے تھے کوہستان، جو حالیہ بھرتیاں ہوئی تھی 8 سے 10 افراد، ان کے حوالے سے ہم نے تفصیلات دی، کیونکہ ان کی لسٹ ہمارے پاس آ گئی تھی۔ حکام جو DHC کے ہیں ان سے ہم نے بات کی کہ جناب یہ لوگ بھرتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل بھرتی ہوئے ہیں۔ اور کیوں ہوئے ہیں؟ جب ہم نے پوچھا کیوں ہوئے ہیں، کوہستان کے لوگ تھے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے وہاں سے بھرتیاں کیوں کی ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی ڈیبوش کے سرٹیفکیٹ چاہیے تھے، سیفٹی آفیسرز کے لیے اس میں ڈپلومہ چاہیے ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، وہ یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو ہم نے جب پوچھا کہ بھائی آپ نے اشتہار دیا تھا اس بارے میں، تو انہوں نے کہا اشتہار بالکل نہیں دیا تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بالکل غیر قانونی یہ پوسٹیں تھی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے جو ہماری ذرائع ہے، جو ذرائع ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ نیووس کے سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے تھے یا جو فارمیلٹیز بتائی گئی تھی ہمیں،
जिन लोगों को भर्ती किया गया है उन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, और ऐसे ही उठाकर एक और बात भी यहाँ आती है, कुछ होती हैं मैनेजरियल लेवल की जो पोस्ट होती हैं, हाईली ट्रेंड लोग उसमें लगते हैं। चलें, वो तो बंदा इंटरनेशनली भी हायर करता है, मुल्की तौर पे भी जो चीदा कुछ सीटें होती हैं। ये कोहिस्तान के साथ इंतहाई ज़्यादती नहीं है कि वहाँ का जो ये कुक होते हैं, चौकीदार होते हैं, ये क्लास 4 के मुलाजमीन होते हैं, इनको भी बाहर से लिया भाई बाहर से लिया जा रहा है, पूरी फैमिलीज को लाकर, पूरी फैमिलीज, बेटे भांजे भतीजों को लाकर यहाँ पे बिठाया गया है। इससे पहले आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, अब आवाज़ उठ रही है। और 2 दिन पहले भी पावर शो हुआ था, उससे पहले भी पावर शो हुआ था, वार्निंग भी जारी हुई। अब 2 दिन बाद डायलॉग होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उसमें ये लिस्ट जो है बड़ी कारामद होगी। इसे बतौर सबूत पेश किया जा सकता है कि भाई ये लोग हैं। डीसी को पेश किया जाए, जीएम वापडा को दिखाया जाए कि भाई डीएससी में ये लोग हैं, और हमारे लोग अब अपनी सीवीज लेके दर बदर यहाँ पे ठोकरें खा रहे हैं, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया है और हमारे लोगों को जॉब नहीं दी जा रही। तो ये एक एज अब हासिल हो गया है। अब इस लिस्ट को लेकर पूरे कोहिस्तान के लोग आ सकते हैं सड़कों पर, और आना भी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों अफराद यहाँ पे लाके भर्ती किया गया है। 1, 2 या 4, 5, 10 लोग नहीं हैं। और बाखुदा हमें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी तादाद में भर्तियाँ हुई है वहाँ पे। हम तो सोच रहे थे कि 10, 15 या 20, 30 लोग होंगे जिन्हें भर्ती किया गया है। 130 से 40 अफराद, ये बड़ा जुल्म है शाहनवाज कोहिस्तान के लोगों के ऊपर। और इस हवाले से देखते हैं जो अभी इस वक्त जो सरगर्म है तहरीक हुकूक कोहिस्तान के जो अरकान हैं, वो इस मामले को लीड कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले भी उन्होंने एहतजाज किया, उनका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। उनको लाइन पे लेते हैं सचमल। बिल्कुल जी, हफीज़ रहमान साहब है, तहरीक हुकूक कोहिस्तान के सरगर्म कारकुन हैं। हफीज़ साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। सर, सैकड़ों भर्तियाँ हो गई है डीएससी में, लिस्ट आ गई है आपके पास, ये देख रहे हैं आप। क्या समझते हैं अब क्या एज हासिल होगा और किस तरह जदोजहद आगे जारी रखेंगे? इनसे हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमें डेटा दिया जाए। अंजुमन तहरीक हुकूक कोहिस्तान ने जब पहला पावर शो किया था तो उस वक्त भी हमने जाकर डीसी ऑफिस में, जीएम ऑफिस में यही कहा था कि हमें अपने जितने आपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोगों को रखा है, इन लोगों का डेटा हमें दी जाए। लेकिन अब तक वो डेटा हमें ये लोग फराहम नहीं कर सके। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, मेजॉरिटी जो मुलाजिमीन हैं वो ऐसे हैं कि आपने मतलब ड्राइवर बाहर से रखा है, कुक बाहर से रखा है, कुक का हेल्पर आपने बाहर से रखा है, आपने चौकीदार बाहर से रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर बाहर से रखा है, आपने टेलीफोन ऑपरेटर बाहर से रखा है। बहुत से ऐसे बेतहाशा बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हम जो चीख रहे थे वो साबित होने जा रहा है। अच्छा हफीज़ साहब, ये डायलॉग जो होंगे इसके बाद क्या लाएअमल होगा? क्या आपको लगता है मुज़ाकरात इनके साथ कामयाब होंगे या नहीं? तो आप क्या लाएअमल लेंगे इसके बाद? 22 तारीख को अंजुमन तहरीक हुकूक कोहिस्तान इस मामले को लेके जाएगी मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर। इन सारी चीज़ों को ऑन द रिकॉर्ड सबूतों के साथ इनको पहुंचा देगी। रही बात ये कि हम अंजुमन तहरीक हुकूक कोहिस्तान इसको लेके मजीद क्या सोच रही है, हम ये सोच रहे हैं कि 22 तारीख को या तो इन लोगों को, यानी कि जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, अगर इनको ये नहीं ले रहे और बाहर से लोगों को ले रहे हैं, जो बाहर के लोग इनको नहीं निकाल रहे, तो हम मजीद शिद्दत के साथ बाहर निकलेंगे, मजीद कुव्वत के साथ बाहर निकलेंगे। कौम से अपील करेंगे कि वो हमारा साथ दे। और कौम इस चीज को देख रही है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने 130 लोगों को बाहर से भर्ती किया है, तो फिर आपके वापडे की क्या हालत है, फिर आपके चाइनीज कंट्रैक्टर की क्या हालत है। वहां पे चाइनीज में इन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हैं बेतहाशा। वहां पे जो वो रोलर चलाने वाले हैं, डंपर्स चलाने वाले हैं, बाहर से इन्होंने लोगों को रखे हुए। यहाँ पे वापडा के अंदर एक ने अपने बेटे को और भांजे को खुद असिस्टेंट बनाया, दोनों को कलरक रखा है। ये तो हमारे हाथ लग गए। बड़ी नवाज़ हफीज़ साहब, मेरे ख्याल में अब अरबाब साहब को लेते, सीनियर रुकन है तहरीक हुकूक कोहिस्तान के। अरबाब साहब, बड़े वादे किए गए कि कोहिस्तान के लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जॉब्स दी जाएंगी। लिस्ट आपके सामने है, 108, 110, 130, 140 अफराद को बाहर से लाया गया है और बिठाया गया डीएससी के ऊपर। क्या समझते हैं, कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? वापडा और डीएचसी लोगों को उनके जायज हुकूक नहीं दे रहे, उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उसके खिलाफ लोग इसलिए उभरते हैं कि वो उनके साथ ज्यादतियां कर रही हैं। जब किसी को दीवार से लगाने की बात करोगे तो खुद बहुत एक्शन रिएक्शन ये अमल का हिस्सा है।
इंजमन हुकूक तहरीक कोहिस्तान को इस हद तक मजबूत किया जाएगा कि हर यूनियन कौंसिल पर और हर विलेज कौंसिल तक हम इसकी तंजीम साजी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये एक ऐसी मजबूत आवाज़ बन के उभरेगी कि कोहिस्तान के ऊपर कोई भी जालिम कोहिस्तानियों का हक दबाने के काबिल नहीं होगा। और इंशाअल्लाह हम अपना हक हर महाज पर, हम कानूनी तौर पर, हम सियासी तौर पर और हर लिहाज से हम लेके रहेंगे अपना हक इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आप दोनों हजरात का हमें वक्त दिया। मेरे ख्याल में शाहनवाज अब चूँकि यहाँ एक सवाल और उठता है सजमल, ये इनका मौक़िफ़ था, इनका ये लाएमल था, ये बताएंगे आप क्या देखते हैं कि ये डायलॉग मुस्बत होंगे, क्या इन डायलॉग से कुछ तब्दीली आएगी, क्या तब्दीली आनी चाहिए? देखें, दो बातें होती हैं, एक तो अपना हक मांगना होता है, एक ये होता है कि अपने हक से तजावज़ करके कोई चीज़ मांगनी होती है। तो वहाँ पे जब तजावज़ आप करते हैं तो बैक फुट पे जाया जा सकता है, एक रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई हाँ ठीक है, ये हमारा हक था, हमें मिल गया है, अब बाकी नहीं छेड़ते हैं डिपार्टमेंट्स को, DHC को, वापडा के दीगर इदारों को। लेकिन अब मेरे ख़्याल में यहाँ पर बुनियादी हक है जो मुतासरीन है कोहिस्तान के, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना था, वहाँ पर से उनको निकाल बाहर किया जा रहा है। तो इस चीज़ में अब इतनी इंसानियत होनी चाहिए वापडा में भी और ज़िली इंतज़ामिया में भी कि वो अपने अवाम का साथ दें और जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करें। और इस डायलॉग में ये एक मौका है DC साहब के पास कि वो साबित करें अवाम के सामने कि वो कोहिस्तान के खैर ख्वाह हैं, वो कोहिस्तानी गरीब आवाम के खैर ख्वाह हैं, वो जो चाहते हैं कि कोहिस्तान में बेहतर काम हो। तो मेरे ख़्याल में यही मौका है उनको साबित करने का, कोहिस्तान के लोगों को का साथ देने का। अब चूँकि तहरीक तो उठी है, अब ये लिस्ट मिलने की देर थी, अब लिस्ट भी मिल गई, लोगों के पास एक बहुत बड़ा सबूत आ गया है, उसके बाद मेरे ख़्याल में रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, एक अच्छे फीडबैक के मुंतज़िर हैं। मुझे और मेरे को होस्ट साजमल यूदन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।